প্রিয় দর্শক, খবর রাম মন্দিরের চুরির ঘটনায় এবার যারা চুরি করেছে তাদের সরাসরি আক্রমণ করলেন কংগ্রেস প্রেসমিট করে বললেন। বিস্তারিত কি বলেছেন বক্তব্য শোনাবো আপনাদের। সুপ্রিয়া শ্রীনাথে, কংগ্রেসের মুখপাত্র, কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাথে যারা চুরি করেছে তাদেরকে কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন সরকারের কাছে। কি বলেছেন বিস্তারিত শোনাবো আপনাদের, তবে তার আগে তার দু একটি কথা। কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাথে তিনি তিনার বক্তব্যে বললেন, অযোধ্যায় কি হয়েছে, অযোধ্যায় কি চুরি হয়েছে, অযোধ্যায় ঘোটালা হয়েছে, নাকি অযোধ্যায় লুট হয়েছে? তিনি মন্তব্য করেন, অযোধ্যায় মহাপাপ হয়েছে। মন্তব্য সুপ্রিয়া শ্রীনাথের। তিনি আরও বলেন, অযোধ্যায় প্রভু রাম মন্দিরের ঘরে চুরি হয়েছে, সেটা 100 কোটি মানুষের মনের বিশ্বাসের চুরি করা হয়েছে, মানুষের মনের আস্থার চুরি হয়েছে। 40 দিনে 70 বার চুরি করা হয়েছে, 40 দিনে 70 বার চুরি হয়েছে, কিন্তু 5 বছরে যে চুরি হয়েছে তার হিসাব কিভাবে পাওয়া যাবে? প্রশ্ন কংগ্রেস নেত্রীর। তিনি আরও বলেন, 80 লক্ষ টাকা চুরির কথা জানা যাচ্ছে, কিন্তু 5 বছরে কত টাকা চুরি হয়েছে তার হিসাব কিভাবে জানা যাবে? প্রশ্ন কংগ্রেস নেত্রীর। কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাথে তিনি আরও প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, চম্পত রায় তিনি মহাসচিব ছিলেন না রাজা ছিলেন? তার সিকিউরিটি এজেন্সি ছিল প্রায় 400 সুরক্ষা কর্মী, যার খরচ বছরে 12 কোটি টাকা, প্রতি মাসে 1 কোটি টাকা করে। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন্দ্র সুরক্ষা কর্মী ছিল, রাজ্যের সুরক্ষা কর্মী ছিল, এত সুরক্ষা কর্মী থাকা সত্ত্বেও চম্পত রায় 400 কর্মী নিয়ে কেন রেখেছিলেন? প্রশ্ন কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাথের। তিনি আরও মন্তব্য করেন, যেদিন 2 কোটি টাকার জমিন 18 কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছিল, লুট হয়েছিল, তখন এই দুর্নীতির ঘটনায় লাগাম লাগানো উচিত ছিল। তিনি আরও বলেন, কয়েকজন কর্মী যখন চুরির কথা জানতে পারেন তখন তাদের সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়, সত্যি কথা বলার জন্য তাদেরকে সেখান থেকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়, তখন জেনেও না জানার ভান করা হয়। প্রশ্ন কংগ্রেস নেত্রীর। ভারতবর্ষের বিখ্যাত মেলা হয় কুম্ভ মেলা, যেখানে কোটি কোটি শ্রদ্ধালু তারা জড়ো হয়। সেই সমাতেও চুরির কথা বলেছিল, কিন্তু যে বলেছিল তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্ন কংগ্রেস নেত্রীর, সত্য কথা বলার জন্য কেন তাদেরকে বের করে দেওয়া হলো? কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাথে তিনি আরও বললেন, লবকুশ নামের এক ব্যক্তি, যাকে 12,000 টাকা করে বেতনে রাখা হয়েছিল, 5 মাস 6 মাস পর তার বিলাসবহুল বাড়ি জমি কিনে একজন কিভাবে করতে পারে শহরের মধ্যে এত বড় বাড়ি, যার খরচ প্রচুর খরচ, প্রায় 20 থেকে 25 লক্ষ টাকা, এবং তিনি 12,000 টাকা বেতনের মাইনে করা চাকরি করা লোক, তিনি আবার 50,000 টাকা খরচ করে মাঝে মাঝে পার্টি দিত। প্রশ্ন কংগ্রেস নেত্রীর। টিনু যাদব যাকে ধরা হয়েছে তারও অবস্থা ঠিক এই রকমই। রাম মন্দিরের বিষয় নিয়ে সঠিক তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাথে। বিস্তারিত কি বলেছেন, বিস্তারিত তিনার বক্তব্য শোনাবো আপনাদের। এই ভিডিওটি যিনারা দেখছেন ভিডিওটি শেয়ার করবেন, চ্যানেলটি লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। আই লাভ মাই ইন্ডিয়া, মেরা ভারত মহান। আপনারা দেখছেন আখেরিগঞ্জ নিউজ। आज राजनीति को छोड़ देते हैं, आज तीखा टिप्पणी को भी छोड़ देते हैं। आज ठंडे दिमाग से हम सब एक सवाल पूछते हैं अपने आप से, एक दूसरे से। अयोध्या में क्या हुआ है? अयोध्या में चंदा चोरी हुई है, अयोध्या में चढ़ावा चोरी हुआ है, अयोध्या में घोटाला हुआ है। अयोध्या में आखिर क्या हुआ है? ये कोई साधारण चोरी है, साधारण घोटाला है? क्या हुआ है अयोध्या में? अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, वहां आखिर क्या हुआ है? और हिंदू धर्म की अनुयायी होने के नाते मुझे लगता है ये सवाल बरबस
बस मन में आता है, राजनीतिक टिप्पणी भी करूंगी, लेकिन उससे पहले यह सवाल मन में आता है, अयोध्या में आखिर क्या हुआ है? और उसका जवाब यह है कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी नहीं हुई है। अयोध्या में महापाप हुआ है। अयोध्या में 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर ऐसा प्रहार हुआ है जैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अयोध्या प्रभु राम की नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम, न्याय के, धर्म के, प्रतिष्ठा के प्रतीक प्रभु राम की नगरी अयोध्या में जब इस तरह का घोटाला होता है तो वो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर सबसे बड़ा इतिहास में हमला है। और इसीलिए मन में एक सवाल आता है और मन में एक बात आती है, क्या यह सच नहीं है कि भक्तों का पैसा खा गए बीजेपी के चोर और रामलला को लूट लिया? यह है इनका दौर। और शुरुआत में एक और सवाल से करना चाहती हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी भूमि पूजन करेंगे, वही शिलान्यास किया उन्होंने ही उद्घाटन किया, उन्होंने ही प्राण प्रतिष्ठा करी, ध्वजारोहण भी मोदी जी ने किया, ट्रस्ट भी मोदी जी ने बनाया। और जब चंदा चोरी की बात आई तो मोदी जी सेशल्स में एक अवार्ड खरीदने में व्यस्त थे, जिसकी स्पेलिंग भी गलत है। शायद देर रात को लौटे हैं, आप लोगों को तो खैर सवाल पूछने का मौका उनसे नहीं मिल पाता है, लेकिन इस देश में कोई तो पूछेगा ना उनसे कि आप सारा श्रेय लेना चाहते थे। और जब हिंदू धर्म में और हमारी आस्था पर इतना बड़ा प्रहार हो रहा है, हमारी आस्था को तार तार करके रख दिया गया है, हिंदू धर्म के अनुयायियों के साथ इतना बड़ा भद्दा मजाक किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल चुप है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। आप हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार बनते थे और आज प्रभु राम के दरबार में मची लूट को देखकर जो आपके लोगों ने की है, आपके सबसे ट्रस्टेड लोगों को आपने इस ट्रस्ट में डाला था, आप चुप है? क्या हिंदू धर्म की, हिंदू अनुयायियों की, हिंदुओं की आस्था की ये इज्जत है आपके मन में? आनन फानन में, और मैं पहले पॉइंट से ही शुरू करती हूं, जैसे ये महापाप सामने आया, आनन फानन में एक एसआईटी गठित करी गई, जिसका उद्देश्य, जिसकी सारी कवायद थी, प्यादों को पकड़ो, बड़े लोगों को छोड़ दो, माल ठिकाने लग जाए। इस एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई। ये रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? सरकार द्वारा गठित एसआईटी, जिसमें सरकार के बाबू शामिल थे, इन सरकारी बाबू ने सरकार के एक और बाबू को ये रिपोर्ट सौंप दी। जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर सरकार है, क्या न्याय की उम्मीद की जाए इससे? और उस एसआईटी को, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। जब चंदा लेने का वक्त था, जब चढ़ावा लेने का वक्त था, जब आस्था की बात थी, तो इस देश के गरीब ने, इस देश के मध्यम वर्ग ने, इस देश के लोगों ने पूरी आस्था, पूरे विश्वास से प्रभु राम के दरबार में दान किया। और जब उसके साथ खिलवाड़ हुआ तो आपने एक गुप्त, गोपनीय एसआईटी गठित करी, और पता ही नहीं उस एसआईटी की रिपोर्ट क्या है, ये सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है, ये किसी वेबसाइट पर क्यों नहीं डाली जा रही है? 40 दिन में 70 चोरियां हुई, ये सीसीटीवी ने कैप्चर किया। 40 दिन में 70 चोरियां। जिन मुगलों को पानी पी पी कर गाली देते हैं, तो गजनवी ने भी ये नहीं किया था जो इन्होंने कर डाला। और आपको आगाह कर दूं, ये 40 दिन में 70 चोरियां सिर्फ 40 दिन का ब्यौरा दे रही हैं। 5.5 साल में कितनी चोरी हुई है, इसका ब्यौरा कौन देगा? क्योंकि असलियत यह है कि सालों से लगातार संगठित रूप से हर रोज लूट का कार्यक्रम चल रहा था, जो सबकी जानकारी में था, सबकी निगाह में था, और इसका स्वाद सबने चखा है, इसमें सबकी मिली भगत है। मॉनिटरिंग सिस्टम कहां था? सीसीटीवी फुटेज 45 दिन की ही क्यों थी? सिक्योरिटी कहां थी? आपको लगता है कि वो जो छोटे छोटे प्यादे पकड़े गए उनके बस की बात थी इतने बड़े भव्य मंदिर में इतनी बड़ी चोरी कर लेना? 80 लाख रुपए जब्त होने की खबरें सामने आ रही हैं। 80 लाख रुपए जब्त होने की खबरें अभी की सामने आ रही हैं। आप ये सोचिए 5.5 साल से कितना पैसा लूटा गया होगा।
40 दिन में 70 चोरियां हुई हैं। 5.5 पौने 6 साल जब से मंदिर का अनावरण हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, तब से कितनी चोरी हुई होगी। और सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में एक आता है, आपके घर में अगर चोरी हो जाए आज, तो आप पुलिस के पास जाइएगा, रिपोर्ट लिखाइएगा, FIR होगी, पुलिस आएगी, लोगों को उठाएगी, रिमांड पर लेगी और उसके बाद उनको ठोक बजाएगी और सच उगलवा लेगी। क्योंकि पुलिस अगर चाह जाए तो मंदिर की चप्पल नहीं चोरी हो सकती है। यहां पुलिस आई, पुलिस ने प्यादों को गिरफ्तार किया और वो प्यादे स्टेट के दामाद बनकर जेल में मौजिद की जिंदगी जी रहे। और बड़े लोगों को छोड़ दिया गया, बड़े डाकुओं को, कि आप लूटा हुआ माल पहले ठिकाने लगा लीजिए। FIR में नाम टिन्नू पिन्नू, पता नहीं किसका किसका नाम है, छोटे छोटे लोगों का। ये टिन्नू पिल्लू ये सब चोरी कर रहे थे मंदिर में, और बड़े लोग बैठे आंख मूंद कर राम भजन कर रहे थे। तो सवाल इस बात का है कि FIR में नवों का नाम नहीं आया, छुटपुटिए गिरफ्तार हो रहे, बड़े बड़े डाकू स्वच्छंद घूम रहे हैं। और इसीलिए मैं अब मेन किरदार की भी बात करना चाहती हूं। आनंद फानन में SIT की रिपोर्ट आई और शपथ लगाने के बाद चंपत राय बंसल, जो ट्रस्ट के महासचिव थे, सर्वे सर्वा थे, वही आदि अनंत बने हुए थे ट्रस्ट का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या इस्तीफा देने से बच जाएंगे चंपत राय जी? चंपत राय जी इस्तीफा देते हैं और उनको जैसे इजी रूट से निकाल दिया गया। पहले दिन से कवायद है कि उनको बचाया जाए, लेकिन उनका इस्तीफा इस बात का सबूत है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा महापाप हुआ है। ये दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। और इसी से ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। 40 दिन में 70 चोरी सामने आ गई, तो शुरू से ऑडिट कैसे होगा? और ट्रस्ट पर अभी मैं बोलती हूं उसके पहले, लेकिन मैं आपको कुछ बातें जो पढ़ी मैंने, मेरी रूह कांप गई। ये कोई चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी नहीं था, ये क्रिमिनलाइज्ड गैंग एक ऑपरेट कर रहा था। और मैंने भारत समाचार में अभी खबर पढ़ी आते वक्त, चंपत राय बंसल कोई महासचिव नहीं थे, वो तो पूरे राजा आदमी थे भैया। एक एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी उनकी थी, 400 लोग उसमें कार्यरत थे। महीने का 1 करोड़ मतलब साल का 12 करोड़ रुपए उस सिक्योरिटी एजेंसी को दिया जाता था। वो सिक्योरिटी एजेंसी बीजेपी के एक्स MP बिहार के कोई है, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है। 400 निजी कर्मी, सुरक्षा कर्मी उस मंदिर में चंपत राय की सुरक्षा करते थे, और वो उस रूट पर भी तैनात रहते थे जहां पर गिनती होती थी, जहां से पैसा बैंक जाता था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र की सुरक्षा बल तैनात है, राज्य का फोर्स तैनात है, तो ये 400 निजी सुरक्षा कर्मी 1 करोड़ रुपए महीने पर क्या कर रहे थे? चंपत राय जी को अगर राजा बनना ही था तो चढ़ावे और चंदे से राजा बनने का उनकी इच्छा पूरी की जा रही थी। उनका जीवन में और वो क्या क्या करते थे, उनकी क्या प्रेफरेंसेस थी, अदरवाइज मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। वो लोग बोल ही रहे हैं तो RSS के बारे में पुरानी बातें कही जाती हैं। लेकिन हाँ, मेरे मन में यह सवाल जरूर उठता है कि ये निजी सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे उनके लिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर एक SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया था। ऐसे ऐसे गिनती होगी, ऐसे ऐसे इसका नोट की गड्डियां बनाई जाएंगी, ऐसे ऐसे ये बैंक आएगा, इन लोगों को एक्सेस होगा, इतना इतना CCTV कैमरा पर कैप्चर होगा। और खबरों के मुताबिक उन नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा था। और SBI ने गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए 3 महीने पहले दान की गिनती करने वाले कुछ कर्मचारियों को निकालने की सिफारिश भी की थी। किसने अनदेखा किया उसको? और क्या ये चंदा चोरी अभी 40 दिन में हुई है? असल में चंदा चोरी और डकैती पहले दिन से हो रही है। जिस दिन 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ की मंदिर के नाम बेची गई, उसी दिन पहला डाका पड़ा था। और जिसने भी उसको बोला, उसको धर्म विरोधी और देशद्रोही कहने की कवायद बीजेपी ने की थी। अगर उसी समय शिकंजा कसा गया होता, अगर उसी समय एक्शन लिया गया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।
किसको नहीं पता है कि महिपाल नाम के एक आदमी ने जब गड़बड़ी देखी तो धर्मवीरू था, वो डर गया। उसने कहा 5-5 लाख रुपए की रोज चोरी हो रही है। उसको नौकरी से निकाल दिया गया, बजाय तफ्तीश करने के, बजाय जांच करने के। उसने कहा 5 लाख रुपए की रोज चोरी हो रही है, और ये शुरुआत में बोल दिया था। आप सोचिए 5 लाख की रोज चोरी से 5.5 पौने 6 साल में कितने की चोरी हुई। और इस बीच महाकुंभ भी आया और हमने देखा कि श्रद्धालुओं का जत्थे का जत्था महाकुंभ प्रयागराज से लेकर अयोध्या जा रहा था। कितना चढ़ा होगा और कितनी चोरी हुई होगी। उसके बाद 2 और लोगों ने आवाज उठाई, उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया। मतलब आगाह किया जा रहा था। जमीन में घोटाला किया, पैसे में घोटाला किया, चंदा चढ़ावे में घोटाला किया। अगर समय रोते हुए चोरी पकड़ी गई होती तो शायद ये महाघोटाला नहीं होता। अब ऐसे अनगिनत लोग सामने आ रहे हैं जो सामने आकर कह रहे हैं हमने फला चीज दान करी, हमें कहा गया उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता देखकर आपको रसीद व्हाट्सएप पर आ जाएगी। व्हाट्सएप पर घटिया फॉरवर्ड आ रहे हैं, रसीदें नहीं आई आज तक। कितने ही लोग हैं। सिंधी समाज पूछ रहा है कि हमारी 200 किलो चांदी की ईंटें कहां हैं। व्यापारी पूछ रहा है हमारी सोने की ईंटें कहां हैं। महिला पूछ रही है हमारी चांदी के काग भुषुंडी कहां है। कर सेवक पूछ रहा है 1250 सोने चांदी की रामशिलाएं कहां है। अब खबर आ रही है कि जो राम निवास बगल में था वहां से हनुमान जी की मूर्ति, राम जी का पलंग, वो सब भी गायब है। और ये सब चंपत राय जी के हाथ में दिया गया था। फोटो भी खींची थी। उन्होंने कहा था रसीदें आएंगी, रसीदें नहीं आई। सामान कहां है प्रभु, ये बताइए। और चोरी का जो लेवल है उसका अंदाजा भी लगा लीजिए। मतलब मैं पढ़कर सुनकर सन्न हूं कि चोरी किस लेवल पर हो रही है। 6 महीने पहले लवकुश मिश्रा नाम के एक आदमी को गिनती के काम पर लगाया गया। लवकुश मिश्रा जी की सैलरी 12,000 रुपए महीना थी। 6 महीने से नौकरी उन्होंने शुरू करी। उन्होंने फटाफट 25-30 लाख का एक प्लॉट खरीदा। उस पर उन्होंने डबल मंजिली की इमारत बनानी शुरू करी अपनी पत्नी को गिफ्ट करने के लिए। उनके गांव के घर से एक टूटी हुई तिजोरी से 12 लाख रुपए नगद मिले। उन्होंने तो पैसे गोबर में भी छुपाए हुए थे। ये हाल है लवकुश मिश्रा जी का। वो एक बार में 50, उसके मित्रों का कहना था एक बार में 50-50 हजार रुपए की पार्टी देता था, ट्रीट करता था। 12,000 रुपए उसकी महीने की तनख्वाह थी। यही हाल टिन्नू यादव का भी था। और सवाल यह उठता है कि क्या सरकार को इसकी कोई भनक ही नहीं थी। आपकी नाक के नीचे ये गोरख धंधा, ये महापाप, ये होता रहा, ये काली करतूतें चलती रही, आपको पता ही नहीं चला। डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक। न योगी आदित्यनाथ के एलआईयू ने कुछ बताया, न मोदी जी की आईबी ने कुछ बताया। कोई खबर ही नहीं मिली। मतलब हमारा खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है। इन बेचारों को कोई खबर ही नहीं आती है, बस व्हाट्सएप पे फर्रे आते हैं। और इसीलिए क्या यह सच नहीं है कि अगर आपको खबर नहीं आई तो आपका पूरा तंत्र फेल है, और अगर आपको खबर आई और आपने आंखें मूंद कर उसकी अनदेखी की तो आप पाप के भागीदार हैं। इतनी बड़ी चोरी हो रही थी जिसके बारे में अदने कर्मचारी बात कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे, शिकायत करने पर नौकरी से हटा दिए जाते थे। ये कानों तक ही नहीं पहुंची। योगी जी बुलडोजर चलाने में व्यस्त है, मोदी जी बिना मतलब के पैसा दे देकर इधर उधर से अवार्ड लेने में व्यस्त है, विश्वगुरु बनने में व्यस्त है। विश्वगुरु बनकर विदेश नीति चौपट कर दी और हिंदुत्व के ठेकेदार बनकर हिंदू धर्म पर सबसे बड़ा धब्बा लगाने का काम किया। और इसीलिए सवाल इस बात का है कि ट्रस्ट की चर्चा कैसे ना हो। ये कोई साधारण ट्रस्ट नहीं है, ये हमारा और आपका पेपर पे बनाया हुआ ट्रस्ट नहीं है जिसको जाके सोसाइटीज में रजिस्टर कर दो। इस ट्रस्ट की घोषणा फरवरी 2020 में खुद नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। इसके सदस्य चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी जैसे तमाम वो लोग हैं जो आरएसएस से बड़े प्रगाढ़ संबंध रखते हैं, आजीवन आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, क्या बोलते हैं, संघ के सेवक रहे। और इसमें तमाम वो लोग हैं, कोई नरेंद्र मोदी की आंखों का तारा अफसर है तो कोई योगी आदित्यनाथ जी का प्यारा दुलारा अफसर है। तमाम आला अधिकारी
सदस्य है। और एक सच ये है कि इस ट्रस्ट को आपने आरटीआई से भी बाहर किया, आपने अपने लोगों से इस ट्रस्ट को भरा। और मेरा मानना है कि जब मोदी जी ये ट्रस्ट बना रहे होंगे तो उनको जरूर लगा होगा कि ये सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं को मैं भर रहा हूं, ये सबसे धर्मभीरू, सबसे धर्मपरायण हिंदुओं से मैं इस ट्रस्ट को भर रहा हूं। और इस ट्रस्ट की नाक के नीचे ये लूट मचती रही, ये चोरी होती रही, ये महापाप होता रहा और ट्रस्ट को भनक ही नहीं लगी। और ये सब आरएसएस से संबंधित लोग हैं। तो जब ट्रस्ट की कोई विश्वसनीयता ही नहीं है तो उसको तो भंग कर देना चाहिए तुरंत। क्यों है ये ट्रस्ट? ट्रस्ट को पता ही नहीं चला कि कितनी सोने की ईंटें आई, कितनी चांदी की ईंटें आई, कितनी कितनी चांदी डोनेट हुई, किसने क्या डोनेट किया, किसी को पता ही नहीं है कुछ। लेकिन एक बात यह भी सच है कि इस पूरे घोटाले ने, इस पूरे चढ़ावा चोरी ने, चंदा चोरी ने आरएसएस का जो असली चेहरा है वो बेनकाब कर दिया है। उनका फर्जी जो भांडा है उसको फोड़कर रख दिया है। आरएसएस लालचियों की, पापियों की एक फौज है। मर्दिन ट्रस्ट में चाहे वो चंपत राय बंसल हो या अनिल मिश्रा हो, गोविंद गिरी हो या दूसरे तमाम नेता हो, ये सब संघ से जुड़े हुए हैं। और ये सब मंदिर के चढ़ावा चोरी में ऊपर से नीचे तक उस पूरे पाप में डूबे हैं। और मेरा मानना है कि असंभव है कि चंपत राय बंसल को या अनिल मिश्रा को या गोविंद गिरी को इसके बारे में पता ना हो। लूट का माल तो लखनऊ से लेकर दिल्ली और यहां से होता हुआ नागपुर तक जरूर पहुंचा है। और इस सब में मैं एक बात दोहराऊंगी, और इसलिए दोहराऊंगी क्योंकि जब आप श्रेय लेते हैं तो आपको सच का भी सामना करना पड़ता है। राम मंदिर बनने का फैसला उच्चतम न्यायालय ने लिया। भूमि पूजन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। शिलान्यास किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। प्राण प्रतिष्ठा किसने की? नरेंद्र मोदी ने। ध्वजारोहण किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ट्रस्ट किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने। किसने उसमें चुन चुन के सदस्य डाले? नरेंद्र मोदी ने। ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। तो जब आपने ये सब किया तो अब जब चंदा चोरी हो रही है, जब खिलवाड़ हो रहा है आस्था के साथ, जब आस्था पर प्रहार हो रहा है, तो आप चुप कैसे रह सकते हैं? आप विश्वगुरु बनने चले थे, आपने विदेश नीति चौपट कर दी। आप बनने चले हिंदुत्व के ठेकेदार, आप धर्म के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये धोखा है और आप धोखेबाज है धर्म के। आपने तो शंकराचार्यों को भी आने नहीं दिया वहां पर। जो हिंदू धर्म के शिरोमणि शंकराचार्य हैं उनको आने पर रोक लगी, क्योंकि मोदी जी को सब कुछ करना था, मोदी जी को टीवी पर छाना था, मोदी जी की छवि सुधरनी थी, मोदी जी को श्रेय लेना था। तो जब श्रेय जीवी आप थे, आज जब इतना बड़ा चोरी और घोटाला और महापाप सामने आया तो आप चुप कैसे हैं? आप कैसे सेशंस घूम रहे हैं? आप कैसे गलत स्पेलिंग वाले अवार्ड ले रहे हैं? आप जाके वहां पर $175 मिलियन डोनेट कर रहे हैं, आपको फर्जी अवार्ड दिए जा रहे हैं जो ना आपसे पहले ना आपके बाद किसी को दिए जाएंगे, जैसे इजराइल में हुआ, जैसे फिलिप कोटलर के साथ हुआ। आप दुनिया घूमने में मशगूल है। यहाँ के कछुओं को मारकर ग्रेट निकोबार में वहां जाके कछुआ खिला रहे हैं, लोकल ड्रिंक पी रहे हैं। आप तो गर्मी के मजे उड़ा रहे हैं, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, इटली घूम रहे हैं, सेशंस जा रहे हैं और दुनिया को आप पाठ पढ़ाते हैं। आप चुप कैसे हैं? और मोदी जी की चुप्पी अपने आप में और तगड़े और असहज सवाल खड़े करती है। और एक और बात का उल्लेख करना चाहती हूं, एक घुट्टी पिलाई जा रही है व्हाट्सएप पर। दुर्भाग्यवश मेरे पास भी कुछ लोग फॉरवर्ड करते हैं उनको। एक घुट्टी पिलाई जा रही है, राम जी सब देख लेंगे, भगवान राम का मामला है, खुद ही देख लेंगे, विपक्ष को क्या जरूरत है उठाने की। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड वैसे तो बीजेपी जो हिंदुओं में आक्रोश है, जो हिंदुओं में गुस्सा है, उसको शांत करने के लिए भेज रही है। लेकिन ये सच है, एक ही सच वो बोल रहे हैं, भगवान राम सब देख लेते हैं। भगवान राम ने देखा, आपको 2024 में अयोध्या नगरी हराया और आपको सबक सीखने का मौका दिया, आपने सबक नहीं सीखा। बीजेपी, आरएसएस, उनके एसोसिएटेड जो संगठन हैं, उन्होंने वही किया जो रावण ने किया था। उन्होंने प्रभु राम को कमजोर समझने की गलती करी। प्रभु राम ने आपको सबक सिखाया था। और मेरा यह मानना है कि चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री, आप कितनी भी लीपापोती कर लीजिए, लूट में शामिल बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने की कवायद करिए, खुद बचने की कवायद करिए, याद रखिएगा प्रभु राम अधर्मियों और अत्याचारियों का दमन जरूर करते हैं। और इसी के साथ मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहती हूं। आज पूरे यूपी में कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है, उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे, वहां पर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मतलब विपक्ष के खिलाफ सारा दमन करना है। जिन लोगों ने प्रभु राम के दरबार में लूट मचाई, उनको माल ठिकाने लगाने का मौका देना है। छोटे छोटे इस्तीफे कराकर प्यादों को पकड़कर आंखों में धूल झोंकना है।